This is class 8 video. If you have not seen the part 1, actually class 8 chapter 7, that means algebraic identities. So if you have not seen the first part, it is my request, first go to the first part, because I have explained the concept of factorization, because in this worksheet you know that worksheet 6 is all about factorization. It's all about factorization, okay? So if you have not seen the first part, please go to the first part, check the all videos and clear your concept, then come to this video. And how to get that video? Just simply go to my playlist. There you will get class 8 algebraic identities playlist over there. You can get the all videos of that chapter, particular chapter, that means chapter 7, or in the description also you can get the link. And one more way you can find that above I button, you can see there is a link. Click over there and watch the first video, then come to this video. So in this video I am going to do from question number 11. So students, welcome back again to my YouTube channel Art of Mathematica. So let's start the worksheet. So the first one, that means in this video the first question is 11 number question. So that question how to solve? Simply you can see this identity, that a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Most of the actually all sums I am going to use this property. Okay, definitely another is there, that a plus b whole square formula, that a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, so one by one I am going to solve. So before that, what I have told you in my earlier video, previous video, that I have to check both the number. Here binomial, it is a binomial, no? So both the number I have to check. Understood? That is there any common that we can take common? Definitely students. So you can see x cube, y cube, and here xy. So if we write this here, I am going to show you 25x cube can be written as, and y cube can be written as this, no? So definitely minus 49x into y. So this x and y can be common. You can take the common x and y. So if we write over there, chalo, xy, then what value is left over there? 25. Tell me, x I have underlined and y only. So 25 is there. Now x square and y square. Q x into x square, and y into y square. So x square y square minus, here both I have underlined, that means this one as a common. So this is the remaining number. So 49. Okay, now xy as it is. Now tell me what I can write over there. 25x square y square, that means 25 is square of 5. X square means x, that square, and y, that square. So 5xy whole square. Understood? Minus 49 means what? 7 square. So now you can see this is our, for us, this is a and this is b. A square minus b square. What is the formula? A plus b into a minus b. So I have to write over there xy into, that is a plus b, that means xy, this is a for us, 5xy is the a for us, my plus 7, that is a plus b, into a minus b, a for our for us xy, 5xy, minus b means 7. So this is the answer. Okay, now this one, p to the power 4 and minus over there and 256. If you don't know, just prime factorization method you have to do, and you will get the number, that square of this. Whose square is this 256? Do you know? I know actually, that is 16 square. If you don't know, follow prime factorization method, that means 2 to the power like this way you can do it. Okay, like 128 will come, then again 264, like this you have to do it. I know actually it is 16 square. So here p to the power 4 can be written as p square to the power 2. Okay, now guys, how to do that? Suppose here p to the power 6 present, suppose. So what you will do? सोचो कि 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आने वाला है. 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आएगा. Tell me 3. So that means you will write p cube that square.
तो यहाँ पे भी 4 है, तो 4 मतलब 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, मतलब 4 आएगा। सो 2 2 4, सो p स्क्वायर दैट स्क्वायर, गॉट इट, ओके। माइनस 16 स्क्वायर, अगेन for us a square minus b square, no, tell me what is a for us, that is p square is a for us and b means 16, so what we'll write, p square plus 16 a plus b, no, into a minus b, that means a means p square and b means 16, answer done। now here suppose this one I am मन ही मन में अगर सोचे कि x है तो क्या क्या आएगा बोलो, पुट, चलो एक स्टेप करके दिखाता हूँ, b माइनस सी एक्स इक्वल्स टू, ओके। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नो, क्योंकि b माइनस सी क्या है हम लोगों के लिए x, सो नाउ डू इट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो क्या होगा a प्लस बी, b फॉर अस x एंड a माइनस b, गॉट इट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स a प्लस b माइनस c, दैट वन डन। Now I should put here third bracket or second bracket. Why? Because minus over there. Be careful. You will not write like this. This is wrong. This is wrong. Again I am telling you, this is wrong. Why? Minus sign. So what to do? Put here another bracket. Or it is better always put the bracket. दे ऐसे करते जाओ, ठीक है ना। और एक स्टेप करो फिर नेक्स्ट लाइन में। तो आप बताओ ये क्या होगा, a। अब प्लस है मतलब अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस बी माइनस सी एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे क्या है बताओ, ए। अब माइनस है मतलब अंदर जो जो साइन जो है उसका चेंज होने वाला है, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। तो यहाँ पे बी का कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा बस। दिस इज द आंसर। सो बी केयरफुल, अच्छा समय ये, ठीक है ना। नाउ अगेन द सेम मेथड, नो, दैट इसको हम x मान सकते हैं और a मान सकते हैं, कुछ भी अदर देन दिस वेरिएबल हमें टेक करना है। कैसे हम टेक करेंगे, यहाँ पे देखो m n l है, तो इन तीनों वेरिएबल को छोड़ के कोई भी वेरिएबल तुम चूज कर सकते हो, ओके। तो चलो इसको हम इस तरह से कराना, अब इसको डायरेक्ट करेंगे। तो अब जो मेथड तुम्हें अच्छा लगेगा वो मेथड फॉलो करना। अगर तुम्हें ये मेथड जब हम करेंगे इसको डायरेक्ट, तो ये मेथड अच्छा लगा तो इसको भी वही मेथड से कर लेना, और तुम्हें लगा कि नहीं सर डायरेक्ट में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस मेथड को फॉलो कर लेना, मतलब इसको x मान के चलना, ओके। तो चलो हम डायरेक्ट करेंगे, तो इसको क्या लिखना है, 5m होल स्क्वायर, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, माइनस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा इसलिए कोई भी कुछ टेक नहीं करना है, मैंने अभी भी कहा ना मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। तो आप बताओ a हमारे लिए क्या है 5m, b क्या है 4n प्लस 3l, ये दोनों साम जो है इनका ये है b, मन ही मन में ये a है, इसको b सोचो। अब बताओ क्या होने वाला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि दोनों स्क्वायर का डिफरेंस है, तो क्या फॉर्मूला है ये 5m प्लस 4n प्लस 3l। मैंने कहा था ना कि ब्रैकेट देना, जो भी अगर बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे तो ब्रैकेट में लिखना। नेक्स्ट स्टेप में आके यहाँ पे जैसे मैंने करा, नेक्स्ट स्टेप में आके चेंज करना उसके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है 5m माइनस फिर से ब्रैकेट 4n प्लस 3l, ब्रैकेट क्लोज। आप बताओ प्लस है मतलब एज इट इज होगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। सो 5m प्लस 4n प्लस 3l हो गया। अब यहाँ पे 5m माइनस 4n, अंदर जो साइन होगा वो चेंज होने वाला है अभी, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो माइनस 4n, अब ये प्लस भी माइनस हो जाएगा 3l। दिस इज द आंसर स्टूडेंट। नाउ टेल मी दिस अगेन द सेम थिंग, 4c जो है ना उसको हम लिखेंगे। चलो एक और स्टेप, ये बाइनोमियल है तो इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पे 4c कैन बी रिटन एज 2c होल स्क्वायर। तो अब हम बताओ इसको क्या मानेंगे a, और इसको मनी मन में b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। अब यहाँ पे तो ये बाइनोमियल है तो क्या करना है, हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो ये भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2a प्लस 3b, अब a लिख दिया मैंने, मतलब इस पार्ट को मैंने लिखा, अभी प्लस है फिर प्लस लिखो। अब ये हमारे लिए b है ना, और ये हमारे लिए क्या है, मनी मन में क्या सोचना है a, और ये क्या है b, तो प्लस b है तो प्लस लिखा है b, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट। अब a माइनस बी, a मतलब क्या है 2a प्लस 3b, मनी मन में सोचेंगे 2a प्लस 3b, इसको मनी मन में क्या सोचेंगे a। अब माइनस साइन है, माइनस लिखो, फिर b,
b मतलब 3c सॉरी 2c ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे तो कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो एज इट इज लिख दो 2a प्लस 3b प्लस b। अब देखो 3b प्लस b लाइक टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 4b आएगा ना, तो इसमें डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे 4b हो गया इसका। अब ब्रैकेट इसका लिखो 2a प्लस 3b। अच्छा गाइस एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती करा, ये तो b नहीं है, मनी में हमें b सोचना है जो है वो क्या है c, 2c, तो 2c लिखो, एक गलती हो गया तो सॉरी फॉर दैट, मैंने नहीं नोटिस करा था। अब फिर से देखो यहाँ पे मनी मन में सोचना है 2a प्लस 3b को a और 2c को b, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2a प्लस 3b प्लस 2c, क्योंकि प्लस 2c मतलब यहाँ पे देखो प्लस b है, b मतलब क्या है हम लोगों के लिए 2c। ओके, तो 3b प्लस 2c हो गया इसका। इसका पहले भी कोई साइन नहीं, मतलब 2a प्लस 3b माइनस 2c एज इट इज लिख दो, ये आंसर हो गया। हाँ ये वाला है, देखो अगर तुम ठीक से ध्यान से सोचोगे तो ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे, देखो मैं राफ में कर रहा हूं, एक बार देख लो, इस जगह पे करूं, चलो इस जगह पे कर रहा हूं, 64m स्क्वायर मतलब 8m होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 64 मतलब 8 का स्क्वायर है और m स्क्वायर मतलब m होल स्क्वायर, ठीक है, 8m होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो हमें इसको लिखना है और इसको, अब देखो ये भी स्क्वायर फॉर्म में 81n स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है बताओ, 9 का, तो 9n दैट होल स्क्वायर। अब हमें क्या a मिल गया b मिल गया, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में जो रहता है वो a है और ये b है, तो a क्या है 8m, तो a स्क्वायर क्या है 8m होल स्क्वायर, b क्या है 9n, तो b स्क्वायर क्या है 9n होल स्क्वायर। अब इसको देखो 144mn आ रहा है या नहीं, अगर सोचो कि a माइनस बी होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ना ये दोनों तो मिल गया ab, तो यहाँ पे बीच में क्या है माइनस 2 इंटू ab मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, तो यहाँ पे ये तो मेरा फर्स्ट है और ये थर्ड है ना, तो क्या करना है फर्स्ट इंटू थर्ड को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू, सो 2 इंटू फर्स्ट मतलब 8m, थर्ड मतलब 9n। आप बताओ इसको मल्टीप्लाई करने से 8 2 जा 16, 16 9 जा 144 है, यहाँ पे 144 बस। तो ये किसका फॉर्मूला है 8m माइनस है मतलब माइनस 9n होल स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया तुम्हें, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे 8m माइनस 9n होल स्क्वायर माइनस, आप बताओ 5 किसका स्क्वायर है 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5p होल स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो सम था ना ये सम, ये वाला 13 14 एंड 15 बाइनोमियल को डायरेक्टली स्क्वायर फॉर्म में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक होल स्क्वायर फॉर्म का एक्सपेंड करके दिया गया है, तो नर्वस मत होना, कंफ्यूज मत होना, इसको बस स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लो, बस तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। आप तो कर पाओगे। इसको मन ही मन में क्या सोचना है, इसको सोचेंगे a और इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला बताओ a प्लस b मतलब 8m माइनस 9n प्लस 5p, p तो है राइट, तो a प्लस b हो गया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, अभी इसको यूज करा अभी यहाँ पे, अब इसको यूज करने वाले हैं। अब a माइनस बी मतलब क्या है 8m माइनस 9n, ये है a, अब माइनस बी मतलब माइनस 5p। देखो यहाँ पे और एक ब्रैकेट नहीं देना है इस जगह पे, क्योंकि ये मोनोमियल है, जब भी बाइनोमियल होगा तब देना है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं दे सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट में है, इसके पहले प्लस साइन है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट देके करा, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब बताओ इसमें क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव होगा तो कुछ साइन नहीं है, प्लस है, इधर भी प्लस था, तो 8m माइनस 9n हो गया इसका। चलो अब प्लस 5p, इसका तो बन गया फर्स्ट वन। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे 8m माइनस 9n माइनस 5p, बस ये आंसर है। ओके चलो अभी 17 से कराएंगे, सो लेट्स चेक नाउ क्वेश्चन नंबर 17। बिफोर डूइंग दिस सम लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला a प्लस बी प्लस, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ए प्लस बी प्लस सी दैट होल स्क्वायर। मैंने कहा था ना मेमोराइज नहीं करना है, तुम याद रख सकते हो बिना मेमोराइज करके। कैसे? अगर अभी तक तुमने ये चैप्टर का मतलब 7 चैप्टर का इस वर्कशीट का साम नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लो। मैंने बहुत अच्छे से इसका जो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे विदाउट मेमोराइजेशन मैंने एक्सप्लेन करा है। क्या होना है, एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों जो एल्जेब्रिक नंबर्स है उसको स्क्वायर करके प्लस बिटवीन प्लस साइन देके लिख दो। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए बी, और पावर में क्या है 2 तो लिखो 2ab। फिर प्लस, याद रखने के लिए इसके लिए 2 नहीं आ रहा है, इसका और कोई रीजन है, उस वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन करा है। लेकिन याद कैसे रखोगे, पावर में जो है उसको कोएफिशिएंट में लिख दो। यहाँ पे प्लस ए के साथ बी हो गया, अब ए के साथ सी मतलब 2ac प्लस, अब ए के साथ तो सबका हो गया, इन दोनों का अब बी के साथ करो bc 2bc। रिवर्स में नहीं आना है, बैक में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो होगा राइट साइड में होगा, तो फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, देखो 16 जो स्क्वायर टर्म है ना उसको लेके पहले ए बी सी को फाइंड आउट करो, क्योंकि अगर तुम्हें ए बी एंड सी पता चल गया तो ये सब तुम अपने आप ही अरेंज कर पाओगे, है ना। तो करो फिर। तो अब देखो 16 मतलब 4 का स्क्वायर, x दैट होल स्क्वायर मतलब 4x होल स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस 3 है 9 का स्क्वायर तो 3y होल स्क्वायर, क्योंकि y दैट स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, है ना। प्लस 4z मतलब 4 किसका स्क्वायर 2 का 2z होल स्क्वायर। अब तुम्हारे लिए a क्या है, मन ही मन में क्या सोचोगे तुम कि 4x जो है तुम्हारे लिए a है, 3y जो है वो है b एंड 2z जो है वो है तुम्हारे लिए c। अब इनके बीच में देखो सब प्लस साइन है ना, अब अरेंज करने की कोशिश करो। ये अगर तुम इसको समझ में आ गया ना तुम्हारा, तुम ये सम जस्ट ऐसे कर पाओगे, ऐसे बस फॉर्मूला को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, कोई भी मेमोराइजेशन नहीं। एक बार रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वीडियो को एक बार देख लो, ये वाला मेरे प्ले लिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। इसी चैप्टर का जो 7 चैप्टर है क्लास 8 का, उस प्ले लिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा वीडियो। तो और नहीं तो देखो ऊपर आई बटन है, उसमें भी देख सकते हो वीडियो का लिंक, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलो फिर प्लस, आप देखो 20xy है ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 2ab, ab मतलब क्या है, a फॉर क्या है 4x एंड b फॉर 3y। आप एक बार क्रॉस चेक करके तो चेक कर ले, एक बार क्रॉस चेक करके देखे कि सही है या नहीं। 4 2 8 3 24xy आ रहा है। आप नेक्स्ट का बताओ। देखो प्लस 2bc ये लोग लिखेंगे शायद, देखो yz है मतलब y एंड z मतलब bc लिखा है, तो ये वाला तो हो गया। अब इसको चेक करने वाले हम। तो 2b मतलब क्या है 3y आने आएगा एंड c मतलब 2z। आप एक बार चेक करके देखो फिर ये 16 आ रहा है या नहीं, सॉरी 12 आ रहा है या नहीं। 3 2 6 2 12 मतलब ये भी राइट हो गया। अब इसको देखना है AC मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नो। अब देखो ZX है, कोई कैसे पता चलेगा तुम्हें, वेरिएबल को नोटिस करो ZX। तो यहाँ पे देखो Z है और यहाँ पे X है, तो इन दोनों को लेना है मतलब AC है ना। AC देखो मैंने लिख के रखा है, तुम्हारे लिए समझने में थोड़ा आसान होगा इसलिए मैंने लिख के रखा है ऐसे। तो 2A मतलब 4x इंटू C मतलब 2Z। अब बताओ 4 2 8 2 16 है 16Z ZX। अब बताओ ZX एंड एक Z दोनों तो सेम ही है, तो इसको चेंज करने मतलब इसको उतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बन गया ना। तो कौन सा फॉर्मूला बना, ये वाला। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी दैट होल स्क्वायर। अब बताओ a क्या है हमारे लिए 4x प्लस b क्या है 3y, c क्या है 2z होल स्क्वायर। अब कोई भी होल स्क्वायर नंबर को कैसे लिख सकते हो, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इंटू 4x प्लस 3y प्लस 2z। दिस इज द आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्म। ओके चलो नाउ दिस वन। अब 18 का देखो, जो इन तीनों को जो स्क्वायर, हमें क्या करना है वेरिएबल को देखना है, उसका जो स्क्वायर है उन तीनों को पहले अरेंज करना है, तो फिर हमें इसके जैसे ABC मिल जाएगा। तो करो फिर।
अब बताओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हो, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2y होल स्क्वायर। 9z स्क्वायर मतलब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, सो 3z होल स्क्वायर। अब यहां तक तो बन गया। तो हमारे लिए वो बताओ a क्या है? x, b क्या है? मन ही मन में ये सब सोचेंगे, इसको लिखना नहीं है सामने। और c क्या है? z। हो गया ना। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, चलो इसको ना यहां पे लिख देता हूं, जगह कम है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। हो गया। चलो अब हमें यहां पे लिखना है प्लस, माइनस को पहले इग्नोर करो। देखो कैसे करेंगे, फिर से ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अब एक्स वाई है मतलब a एंड b, मतलब ये वाला टर्म होने वाला है, आने वाला है ना। तो अब बताओ कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, चलो इसका साइन को बाद में अरेंज करेंगे, 4 मतलब 2a मीन्स व्हाट? x, b मीन्स 2y, 2 2 4 x आ गया। लेकिन माइनस है यहाँ पे, माइनस। अगर प्लस होता तो कोई बात नहीं, माइनस है तो हमें सोचना पड़ेगा। चलो इसके बारे में बाद में, इसका जो साइन है ना उसको बाद में करते हैं। क्यों? एक बार समझा दूं, तुम बाद में डायरेक्टली कर पाओगे। एक बार सुन लो, यहाँ पे देखो yz है, मतलब yz कहाँ पे है? b, मनी मन में जिसको b सोचा उसमें y है, और मनी मन में जो c सोचा उसमें z है। तो क्या करना है? साइन को नहीं देना है अभी। हाँ, अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू ए बी सी, 2 इंटू बी सी नो, मतलब ये वाला टर्म करने वाले हैं हम, थर्ड वाला मीन्स लास्ट वाला। तो बी सी मतलब 2y होगा इंटू सी मतलब 3z। अब देखो तो 2 2 4 3 12yz आ गया। साइन क्या है? प्लस। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस आ गया, लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब डेफिनेटली x का जो साइन है वो क्या है? नेगेटिव है। अब बताओ क्यों? अगर y, देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहां पे क्या साइन आया था, मतलब है क्या? पहले यहां पे मैंने x नेगेटिव लिखा, यहां पे प्लस करके लिख दो, ठीक है ना। इसमें साइन को एडजस्ट करना है। अब बताओ यहां पे क्या आया था? नेगेटिव मतलब कौन सी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आया था? इसको और इसको, इन दोनों को, a एंड b को, जो मनी मन में a एंड b सोचा, मतलब x एंड 2y को। तो डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई एक तो नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि प्लस माइनस क्या है? माइनस। तो इन दोनों में कोई ना कोई एक तो नेगेटिव है। अब हमें पता नहीं कौन है, तो इसलिए उसको खाली रखा था पहले। ये तो प्लस करके लिख दो यहाँ पे, बेहतर है। बाहर में ना यहाँ पे भी प्लस करके लिख दो, कोई नंबर जो आएगा उसको लिखो और यहाँ पे अरेंज करो। अब कैसे पता चल गया हमें कि ये वाला x जो है वो नेगेटिव है? कैसे पता चला? नेक्स्ट जो टर्म है, मतलब बी सी वाला ये जो करने वाले थे हम, तो उसमें देखा कि बीच में क्या है? प्लस साइन। तो डेफिनेटली अगर y माइनस होता तो इसमें भी माइनस आना चाहिए था, है या नहीं? डेफिनेटली। तो लेकिन यहां पे क्या आया? प्लस। तो ये डेफिनेटली कौन नेगेटिव है हमारे लिए? x। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 4x आ गया। यहां पे एज इट इज लिखो। अब x का वैल्यू तो नेगेटिव है ना, तो अब देखो यहां पे जो है ना ये भी माइनस है, चलो क्रॉस चेक करोगे तो मिल जाएगा, मतलब आ जाएगा। अब AC बाकी है, AC मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो 2 इंटू ए मतलब माइनस एक्स इंटू सी मतलब 3z। अब फिर से देखो x अगर माइनस नहीं होता तो ये भी माइनस होने वाला नहीं था, y अगर होता तो इसमें सिर्फ माइनस आने वाला था। समझ में आ रहा है ना? तो देखो अब फिर से माइनस प्लस माइनस 2 3 6 zx आ गया। चलो तो फॉर्मूला बन गया। अब a मतलब क्या है? माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखो अगर ये माइनस होता तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ही आने वाला था, इसलिए ए स्क्वायर है। लेकिन इन दोनों को अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तुम ना ए के साथ बी को, तो यहाँ पे माइनस साइन आने वाला था, और ए के साथ सी को जब करोगे यहाँ पे भी माइनस आने वाला था।
तो ये टर्म जो है ना, जो तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है ये अंत में है, मैंने यहाँ पे लिखा, ये बुक में जो है अंत में है, ठीक है। तो अब होल स्क्वायर फॉर्म तो बन गया, इसको अरेंज करके लिखोगे तो क्या होगा, 2y प्लस 3z माइनस एक्स इंटू 2y प्लस 3z माइनस एक्स, दैट इज द आंसर। और इसको और भी कोई तरीके से लिख सकते हो, 3z प्लस 2y माइनस, मतलब इन तीनों को तो प्लस माइनस है, मतलब इसको रीअरेंज कर सकते हो, है ना। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 सेम एज क्वेश्चन नंबर 18। और एक बात कहना है, 18 भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख के तुम लोग डर सकते हो, डरना नहीं है, ठीक है ना। चलो वन बाय वन करते हैं। अब 4 इतना भी एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। देखो 4a स्क्वायर मतलब 2a होल स्क्वायर होने वाला है, प्लस b होल स्क्वायर, 25c स्क्वायर मतलब 5c होल स्क्वायर। यहां तक तो हो गया। अब मैंने कहा था ना यहाँ पे प्लस लिख के, अब मनी मन में इसको क्या सोचने वाले हैं हम, बोलो। इसको हम सोचेंगे a, इसको मनी मन में b तो b ही है, और 5c को सोचेंगे c। लिखना नहीं है ये सब, फिर से मैं कह रहा हूं, मनी मन में हम सोचेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2ac आने वाला है। तो उसको अंत में लिख रहा हूँ कि तुम्हारी बुक में ac को अंत में दिया गया है, ac को, है ना। और जो बाकी है वो है bc, यहाँ पे 2bc, ओके। चलो अब तुम लोगों को समझने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए इनको इंटरचेंज करा, क्योंकि ये, लेकिन फॉर्मूला है जो है ना, उसको वही तरीके से याद रखो, मतलब मेमोराइज मत करो कि a के साथ b मतलब 2ab, a के साथ c मतलब 2ac, b के साथ c मतलब 2bc, ओके। चलो आप बताओ, बीच में तो हमेशा प्लस देना है। आप माइनस है तो डेफिनेटली ए बी है, ए एंड बी, मतलब ए, इन दोनों टर्म को लेना है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो 2 तो है, a मतलब 2a एंड b मतलब b ही है, लेकिन इन दोनों में कोई ना कोई एक नंबर जो है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या साइन है, माइनस। अब हमें पता नहीं कौन है, a 2a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट को करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। ये यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो गाइज एक बात तो क्लियर हो चुका है हम लोगों के लिए, b जहां पे रह रहा है ना, वहां पे ही नेगेटिव हो रहा है, देखो, है ना। तो मतलब कौन नेगेटिव है, b। देखो यहाँ पे भी b है, इन टर्म में भी b है, इसलिए बाहर क्या है, माइनस। यहाँ पे देखो नहीं है, इसलिए तो हम एक काम कर सकते हैं कि b को माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक तो करना ही है। तो बस अब देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 ab आ गया। चलो इसको प्लस करके 2 इंटू bc मतलब सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों को लेना है। b तो b ही है, मैंने कहा था माइनस b है, एंड c मतलब 5c। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस bc, 10bc है। तो ये भी मैच हो रहा है। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि जो ये नंबर है ना b, ये नेगेटिव नंबर है, माइनस b होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि माइनस का, फिर से मैं कह रहा हूं कि माइनस b का स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर होगा ना, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो माइनस नहीं बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे आने वाला है माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस। अब इसको देखो, प्लस 2 इंटू सी ए, वेरिएबल को चेक करो, सी ए मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे c है, इनको मत सोचो, ये तो तुम्हारे फॉर्मूला को याद रखने के लिए मन ही मन में तुम्हें सोचना है इन तीनों को, है ना। तो फर्स्ट है a b c, ऐसे सोचना है। चलो अब इनको रब कर देते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट a c मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, सो 2 इंटू 2a इंटू लास्ट क्या है 5c, 2 2 4 5 20ca है, और प्लस भी है, मतलब एकदम मैच हो गया। अब बताओ क्या फॉर्मूला होने वाला है, ये फॉर्मूला ना, ये वाला। तो इसके जैसे फॉर्मूला को लिखेंगे तो b जो है वो नेगेटिव है हम लोगों के लिए, तो डेफिनेटली ये वाला माइनस हो जाएगा, और b जहां पे है मतलब ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला b के आगे साइन क्या होगा, माइनस, ठीक है। जो नेगेटिव है उसका आगे जो साइन है वही लिखना है। तो 2a माइनस b प्लस 5c होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 2a माइनस b प्लस 5c इंटू 2a माइनस b प्लस 5c। दिस इज द आंसर और फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब गाइस यहाँ पे जो है ना, इसके साथ क्या अंतर है, डिफरेंस है, पता है? बस ये रैशनल नंबर में दिया गया है, बस इतना ही है।
यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट जो था वो क्या था, फ्रैक्शन में नहीं था, वो इंटीजर में था, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो क्या हुआ, सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हम। और सभी जो प्लस है मतलब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम, दिस वन। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दिस वन, क्योंकि सब जो है प्लस साइन है। अब फॉर्मूला के जो स्क्वायर है, जो नंबर स्क्वायर है, जो वेरिएबल, उसको पहले अरेंज करो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 जो है 3 नंबर्स वो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर। चलो अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, मतलब b/2 होल स्क्वायर लिखना है। देखो b स्क्वायर तो b स्क्वायर ही है, 4 मतलब 2 स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, मतलब b/2 होल स्क्वायर है ना। सिमिलरली 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये दिस कैन बी रिटन एज c/3 होल स्क्वायर। अब देखो तीनों नंबर मिल गया तुम्हारे लिए। मन ही मन में अब क्या सोचने वाले हो, a मतलब a है, b मतलब b/2 है, और c मतलब c/3 है। मन ही मन में ये सोचेंगे। तो फॉर्मूला क्या आने वाला था नेक्स्ट, 2 इंटू ए बी, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी मतलब b/2। अब इसको अरेंज करके चेक करो मल्टीप्लाई करके, 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दिस 2 कैन बी रिटन एज 2/1, सो 2 कैंसिल होने वाला है, मतलब ए बी है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो ए बी आ रहा है, मतलब फर्स्ट वन तो मैच हो गया। अब 2 जो है बी सी है, अब यहाँ पे भी देखो बी सी वेरिएबल है, बी सी मतलब ये सेकेंड दो वेरिएबल, इन दोनों नंबर को लेना है, अलजेब्रिक नंबर को, प्लस 2 इंटू बी मतलब b/2, सी मतलब c/3। आप देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बस 3 रह जाएगा, मतलब bc/3 है। ओके चलो प्लस करके आप देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल c एंड a, c कहाँ पे है, यहाँ पे, a कहाँ पे, यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर चेक करेंगे तो 2 a मतलब क्या है, a ही है, एंड c मतलब c/3। बस अब देखो कोई नंबर कैंसिल नहीं होने वाला है, तो 2ac/3 2ca/3, ac एंड 3 सेम नंबर, सो मैच हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, इन तीनों का सम करो और उसका स्क्वायर कर दो, b/2 प्लस c/3 होल स्क्वायर। ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा था इसको मन ही मन में सोचना है, ठीक है ना। अब होल स्क्वायर फॉर्म को कैसे लिख सकोगे, a प्लस b/2 प्लस c/3 इंटू a प्लस b/2 प्लस c/3। अब प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो दिस इज आवर आंसर गाइज। एंड याद रखना हमेशा यहां तक आके करके छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन कहा गया है ना, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आई होप गाइज, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ये वर्कशीट खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, उसमें जो कंसेप्ट है उसको ठीक से समझना है, मिडिल टर्म फैक्टर, तो उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसको वर्कशीट करवाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।